Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Gurakshit sir and Prasant sir, and thank you for giving your precious time, okay, to our students. So this is a very important session. Here we will discuss. नमस्कार, जय जगन्नाथ. नमस्कार सब लोगों को. तो this is a very important session. Here we will discuss the approach to attend this test. ये जो एग्जाम होगा इसको हम कैसे अटेंड करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, और आपका जो भी डाउट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो एज यू नो दिस एग्जाम इज ऑफ 2 आवर. 80 questions will be there. 20 questions from English, 20 questions 30 questions from teaching aptitude, and 30 questions from reasoning ability. Okay, so for 20 questions of English, the expected time given there is 20 minutes, but you can give approx 30 minutes for that exam. ठीक है, for that particular part. ओके, इंग्लिश के लिए आप 30 मिनट्स दे सकते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए 35 टू 40 मिनट सफिशिएंट है, और रिमेनिंग टाइम आप रीजनिंग को देना है, और उसके साथ साथ यू हैव टू ऑल्सो फिल द ओएमआर. ठीक है, आपको ओएमआर को प्रॉपरली फिल करने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको टाइम को डिवाइड करके करना है. ठीक है. सो दिस विल बी द मैंने आपका जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कैसे टाइम को मैनेज करोगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. अभी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है. ओके. सो फर्स्ट in the paper the first subject is English. Okay, first you will get the question from English, 20 questions, then 30 questions from teaching aptitude, and then 30 questions from reasoning. So we will start from Gurakshit sir, and he will share how to attend the question. Now see, let us first congratulate him क्योंकि just उनको अभी जॉब मिला है. that is a very prestigious job in सैनिक स्कूल. सैनिक स्कूल का एक खासियत होता है कि सैनिक स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनका एक स्पेशल बेनिफिट होता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी. अभी हम लोग पहले सर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, एंड थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस टीम. सो गुरक्षित सर, प्लीज शेयर योर व्यूज. प्लीज बाद वाला बात मत बोलिए, अभी बोलिए उसको. अच्छा, कुछ चीज है सैनिक स्कूल में, गुरक्षित सर खुद बताएंगे. पहले वो उतना उनका क्या क्या एक्सपीरियंस अभी तक, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बताएंगे. ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा सैनिक स्कूल का एक खास बात जो है. ठीक है. गुरक्षित सर, प्लीज नाउ यू कैन स्टार्ट. यू कैन ऑन योर वीडियो. आप अपना वीडियो ऑन कीजिए. Good evening, dear. Good evening, everyone. Hopefully, I'm audible and visible to you all. Yes, sir. Thank you, everyone, for your wishes and blessings. Recently, I've got a job in Sainik School. That's very true, and it is a residential school that, as you all know. So I have just joined like 2-3 days ago. So I just 2-3 days of experiences with this school. So although all the facilities and everything is in a very good manner, like discipline is the utmost priority here. So similarly, if anything is in a discipline form, like कोई भी चीज़ अगर discipline में है तो obviously वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है, फिर कुछ ज़्यादा ही आपको attract करती है. So similar the situation is here seems. Or although as the time will pass, I'll have some more experiences. धीरे धीरे कुछ time बीतने के साथ मेरे पास कुछ और experiences होंगे. Then only I'll be having a lot to share with you guys. So just this much for just 2 to 3 days of experience in this Sainik school. So once again, thank you everyone for your wishes and blessings. Thank you, Yogesh. Okay, now So can I Gurakshit. start? Yes, you can start the strategy for attending the question from English grammar or English proficiency. Yes, sir. So see, the thing is that we have English proficiency paper which consists of 20 questions. So the thing is there that if something is maths, then maths needs your intelligence, how intelligent you are or how fast you can go on with calculations. If it is physics, it needs your imagination, that how beautifully you can imagine, how you can imagine that situation and you can solve that problem, solve that event.
Similarly, if it is chemistry, it will test your agility. If it is biology, it will test your memory and imagination too. If it is GK and current affairs, it will need, or you can say it will test your awareness. But if we talk of English, unfortunately, there is not no any word that can attach with English or that can define that what is required by English. Because in every sphere, in some way or the other, language plays a very important part. It plays a very important role. So mastering something is a difficult task, but doing better day by day, that's the most important thing that we need to focus on. So similarly, in this RICE exam, what basically requires you, what it tests is that it tests your, that how is your knowledge of English language at a very basic level. Now here I'm saying very basic level. This very basic level can be different for me, can be different for you. So don't take it very lightly, because this is a scoring paper, as well as if you are going to do a lot of mistakes with simple, improper, or by learning improper grammar rules, or due to lack of practice, if you are going to lose more marks in this section, then it will obviously decrease your chances of selection, because English, like you have got 4 to 5 questions from reading comprehension. So what is it? Question is there on your question paper. Answers are also there on that paper only. What you need to do, you need to focus on, you need to read it in a more better way, in a more organized way, and you can get the answers of all those books. But if you are in hurry, if you are doing it in a very fast manner, in order to save your time, like, see, there are 4 questions, so you have at least 4 minutes for that. So for reading comprehension, for those 4 questions, you can give 5 to 6 minutes. You can allot 5 to 6 minutes. Now, what you will be thinking that I'll be doing this in only 2 minutes, so it may lead to disaster. I'm not saying to employ, I'm not saying to use like 10 to 20 minutes on this reading comprehension now. But what I'm saying, that give adequate amount of time, because mainly you will see in reading comprehension what basically happens with the students, where they basically do the commit mistake, is in that they read just the first line. Yeah, this is the answer, let's match it out, let's finish it up. But the situation is not like that. The whole sentence is there, and at the end it will be written that this is an error. In the whole paragraph, suppose it is written that you can take an example that World War I happened in 1914 to 1918. This is a very fact. This is true. Your memory also says that it's a very true. But what is in that passage? That passage is that Ram says that the World War I happened in 1914 to 1918 is a wrong statement. Now, for that thing, you have to maintain that, you have to think that, yeah, whatever is said in that paragraph, that is the most important thing. That is the only correct one. So don't be in hurry, because when we are in hurry, we also get confused with antonyms and synonyms. In place of antonym, we read synonym, and in place of synonym, we read it as antonym. So first and foremost thing that is most important is your 100% calmness of your mind. So whenever you are starting any paper, just take a deep breath, release it, do it for 5 times so that your brain gets stabilized, then start reading with paper. It's not something very difficult. It's only thing which is required is your focus, is your attention. So first thing is have a calm mind. Second thing is have a focus on what you are reading. For those 2 hours, keep your brain, keep yourself inside that classroom only, in that question paper only. Don't think of what will happen or what may happen. That's a different thing. Whatever you have read, that is with you. Do your best. So after these 2 points, third and very important point comes to us in this reading comprehension is reading the whole text carefully. Don't go with like, I have found just one answer I found in first line, so I'll skip the next 2-3 lines. No. First read the whole reading comprehension, then try to read the question, and you will be able to relate it. So this was all about reading comprehension. Next thing is the practice. I have told you earlier also, and now I'm also telling you, I've got less than 10 days. But the thing is that even if you are doing a lot of practice, either it be of English language, or it be of maths, or it be of listening, or anything, practice will make you perfect. And same applies with English also. If you have remembered, if you have die hard, you have
learned all the grammar rules, but if you haven't practiced it a lot, so this can't be applied in that exam. Is the same like if I remember the formula of what is the area of square and what is the area of rectangle, and if question is based on area of square and area of rectangle, and if I have not practiced those type of questions, so I can't do with this, because even the simpler question also requires that formula only, and even the complex one related to mensuration requires that formula. But the basic difference between those two things is how it has been applied. So it will be depending upon the practice. And English is also say something kind of practice on it. Second thing for this is practice a lot. Whatever you have time, allocate some time for practice. Next thing, one thing I'll tell you to read. In the earlier of previous classes also I've told you that make a habit of reading at least one page every day. At least one page. One page will take not more than 10 minutes. You can start reading with just one page. So similarly, read at least one page every day from now on. Even if you have not started, no issues, just read from now. Next type of question that will solve your many doubts, or you can say that can lead to solution of many questions, is the questions that are based on vocabulary. You might not know what is the exact meaning of that vocabs, but still I have taught you some tricks, I have taught you some ways. In order to that you can find out the antonym of that word, in order to that you can find out the synonym of that word. So just revise those things and apply those things on the previous year question papers. So practicing these things are very important in this stage too. And yes, just for the revision purposes, you can go through all the previous videos which is available in Teach Me tab. And even if you have any doubt at any point of time, you can simply text me and I can reply you. I can't promise you that I'll be replying at that very moment, but you will be getting reply within the end of that day. So this was a whole you can say a plan for next 9 days or next 8 days, whatever is in your hand. You can go through this, and before the exam just ensure that these all things are with you or you have done these things. Any other point that I have missed there? Sir, error finding. Yeah, error finding. Error finding is nothing different in that too. If you have read the rules of tenses, if you have read the rules of articles, if you have read these rules, if you have applied this rule in the grammar, if you have read these rules of prepositions, so you can simply find the error in those sentences. But the thing is that it will not suddenly come to your mind. If you practice few questions, at least few questions if you practice, then only you can be sure that yeah, I'll be doing this kind of question in exam. So error finding is nothing much different. Just it's a sum of all those grammar rules which I have taught you, or which you have read, or which you have practiced. It's sum of all. Any other questions? Students, you can ask your questions if you have any doubt. Sir, what should be the approach for sentence rearrangement? Sentence rearrangement, I think I have given you some tips. Yes or no? Yes, sir. Yes. So simply you can follow those steps for that, or if you have forgotten those rules, you can just go through that video once more and you can go for that. In sentence arrangement also, usually you will have to arrange the words of a sentence. Jumbled word will come to form a sentence. So in that thing you can think of what a subject is, what a verb is, and what an object is. Because the structure of English language is what? SVO. Subject, then it will be followed by a verb, it will be followed by an object. So what can subject be? Subject can either be a noun, it can or be a pronoun. So first of all, choose what are noun, pronoun out of those, and which can be placed as a subject. Then go for the verb. What are the helping verbs and what are the main verbs in this? Then try to rearrange that. And whatever the leftover of the part of the sentence is, then you can try to fix it in middle of those. So this is the gist of that video which I have uploaded there, and or which I have taught in this Teach Me tab.
Am I clear, Smita? Yes, sir. Yeah, any other questions, any other doubts? You can also explain about tense, how to attend the question from tense. Regarding tenses, so see, first and foremost thing I have taught you and I have told you multiple times to all of you that time and tenses are two different things. Tense shows the tense shows like present tense, past tense and future tense. We have three broad categorization of this. So what we often get confused that if something is in present tense, it will always refer to present time. But this is not the scenario. I have given you multiple examples and even just a simpler example can be that tomorrow is Monday. So the is referring to the present tense, but tomorrow is Monday is referring to the time that is in future. So don't be restricted that if it is in present tense, it will be referring to the present time. So just try to understand what is the meaning that is coming out of that and then approach with the rules of tenses. If something is in present tense or something is in past tense, doesn't mean that it will always have or it will always be referring to present time or past time. Suppose an example I have also given to you all, like men will be men. This is a very common phrase which you might have seen in memes, that men will be men. So will be is the construction of future tense. But when you try to get the meaning of that, then you will come to know that man was man, man is also a man, and man will also be a man. So it is referring to all the three times. So first thing, understand the meaning of those sentences, what it is trying to mean for, and then approach with the correct tenses for that. Am I clear with this point? Yes, sir. Any other questions or any other query from your part? Sir, see in text, So one student Somebody is is asking saying- about antonyms and synonym, how to, because they don't know every words, they have not memorized. So how to attend the question from antonym and synonym? Yeah, okay, Bhaiya. So again, this whenever you are asking these questions, these are reminding me that you haven't focused on the classes or you haven't seen the lecture which is uploaded on Teachment app. I'm saying to you all because I have uploaded a separate video for antonym and synonym, and even in that video I have not told you one way, but I think 2 or 3 ways I have told you in which you can approach any word even if you don't know the meaning of that word. One approach was that I have told you that try to find out that with this word, whatever the word is given to you, this belongs from which parts of speech, like which part of speech, like mainly the words which are given to you belong from 4 categories. First category is either it will be noun or it will be pronoun or it will be adjective or it will be adverb or it can also be verb. So all those words, whatever is there in antonym or synonym will belong from these 4 categories. And once you have found out that which category of this word belong from, then always understand if a word is noun, so the synonym or antonym of that word will always be noun. If any word is adjective, so synonym and antonym of that word will always be adjective. So similarly, it applies with that. Now, another question you may ask, sir, how will we understand that it is an adjective, it is an adverb, or it is an verb? Because we don't know the meaning of that word. For that thing, I have told you, I have given you some endings, like if any word is ending with T-I-O-N, then it will be noun only. And there is a list of these words. If some word is ending with L-Y, it will be an adjective. So just refer to that video and so that all the points, whatever I have discussed there, will get recalled in your mind, because discussing all those points of videos is not feasible now, but you can refer to that video, and I have told, I think 3 ways, at least 2 ways are there, but I think I have told you 3 ways to approach those type of answers. So once Sir? just go and refer that video. Yeah. सर अगर सारा नाउन हुआ या फिर सारा ऑप्शन एडजेक्टिव हुआ तो फिर कैसे करेंगे?
For that thing also video में सारे के जवाब हैं. Once you go through that video, your all doubts of antonym and synonym will be clear. Don't worry for that. Okay, sir. See, after watching that video, there are 90% chances that you will do the answer correctly. And for the 90% chances are there that after watching that video, you will be able to, out of 10 questions, out of 10 antonym and synonym, you will be able to do at least 8 to 9 questions correct. Okay, thank you, Guru Rakshit. And if you want to say anything about phrasal verb or strategy to solve the question from phrasal verb, then you can also add some points. Bhaiya, can you please repeat? Your voice was not audible clearly. If you can add some points that how to attend the question from phrasal verb, because one question posted how to attend the question one word type question. That means the phrasal verb simply, because one word question is not in the syllabus of RIC. So for phrasal verb, if you can add any points, Exactly. yes. Exactly, Bhaiya. One word substitution is not there in RI, and even I have gone through previous year questions. I haven't found any question which will be related to this kind of things of like one word substitution. But yeah, phrasal verb can be there. Some questions related to phrasal verb can be there. So for this phrasal verbs, I think I have uploaded one video for this. Some common words or like this. I have uploaded one video in which I have discussed very common phrasal verbs which are there, which are important from the exam point of view. I guess so. I have uploaded that. Although even though I have not uploaded, what you can do, that some common phrasal verbs are there, that the whole question or the whole set of questions revolve around some handful of those words. So what you can do, you can just go through the meaning of those phrasal verbs, so that whenever you are approaching these questions, it will be easier for you to approach that. Okay, thank you very much, Guru Rakshit sir, and this was a very nice interaction with you. Thank you for your time. And if anyone want to ask any question, you can ask. But I think sir has to go because he has responsibility of the hostel also. Am I right, sir? Yes. But if you can, you are definitely requested to stay if you can, and whenever if you want, you can go for that also. So Sir, at least some classes as soon as possible from your side. Can you, sir, take for us? We all try to hardly attempt, join that class. Okay, what you want that I should be discussing in those classes? What you need? सर जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है सर, जो सेट सर हम लोग को दिए हुए हैं, तो सर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उस हिसाब से वो सेट्स को थोड़ा सा सीरियसली डिस्कस है, जैसे कि एग्जाम में आएगा और उसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे. Okay, sir, I will discuss about it and I will surely inform you all in that. यस सर. और सर क्लास लेने से सर कुछ पहले ही टाइम पे सर इन्फॉर्म कर दें, ताकि हम सबको माइंड मेकअप करके उस टाइम पे टाइम निकाल के रख दें, ताकि मिस ना हो हम लोग में से किसी का भी क्लास. ओनली फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सर. और रही बात सर सर टॉपिक का, तो हम लोग को कुछ टॉपिक है जैसे कि ज्यादा जिसका भी वीक है तो रिकॉर्डेड वीडियो सर देख लेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए बोल रहे हैं सर. Okay, I'll discuss it and I'll inform you all in the group. Okay sir, thank you sir. Thank you everyone. thank you, Guru Rakshit sir, once again. Thank you, Bhaiya. Okay. Good night everyone. Okay. Good night, sir. Good night sir, and Thank you for your sir. time. Thank you, sir. Right. ओके सो जैसे कि सर बोले कि
आप जो टेक्निक्स उन्होंने बताया, जो ट्रिक्स उन्होंने बताया, डेफिनेटली फॉलो देम एंड आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोज़ दैट सर हैज़ गिवन, ठीक है। टीच मी में जितने भी हमारे उनके आईडी में जितने भी वीडियोज़ हैं, जस्ट गो थ्रू देम, अच्छे से वहाँ पे देखना है, सारे वीडियोस को देखना है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन कवर्ड एंड कुछ वीडियोस मैंने लिंक में आपको एक और टीचर थे अतुल सर, ठीक है, उनका भी वीडियोस का लिंक मैंने कुछ दिया हुआ है। ही हैव डिस्कस द यस और नो, ही हैज डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, दैट वी जस्ट यू आर रिक्वेस्टिंग Guruksit sir, and if you will find time you will definitely do, but go through the videos of Atul sir also. Okay, he has explained everything, and Guruksit sir and Atul sir are best friends, one of the best friends there. So and same batchmate, same batch, they are batchmates. So that's why you can we will definitely request him to take some classes. वो definitely अगर जितना उनको टाइम मिलता है वो डेफिनेटली टाइम क्लासेस लेंगे, लेकिन जितने भी वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड किया है थ्रू द लिंक टीच मी लिंक ऑफ गुरबख्शित सर एंड आवर वीडियो प्रोटेक्टेड लिंक दैट इज गिवन टू यू, आपको दिया गया है, उसमें सारा वीडियोस है। सारे वीडियोस को अच्छे से देखना, जिस सेक्शन में आपको ज़्यादा डाउट है मस्ट गो थ्रू दैट। फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश में दिक्कत है, मस्ट गो थ्रू द वीडियोस ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के जितने वीडियोस हैं मस्ट गो थ्रू देम। एंड नाउ द नेक्स्ट इज योर टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड नेक्स्ट सब्जेक्ट है, लेकिन थर्ड सब्जेक्ट आपका रीजनिंग है, बट आई विल रिक्वेस्ट प्रशांत सर, he will share the strategy for reasoning, then last में I will conclude everything with the strategy for teaching aptitude. So Prashant sir, please share your points, share your suggestion for the students. Sir, just for 2 minutes you can continue. I will continue this. Okay, just okay. for 2 minutes. Okay, definitely sir. Okay, sir. Okay. Thank you. Sorry. Okay. So see, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखो क्लासेस तो जैसे मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है उतना होंगे, ठीक है। ऑल द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड हैव बीन कवर्ड। इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट मतलब सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, एंड कुछ जैसे आप लोग चाहते हो डाउट डिस्कशन, वो आपको मिल जाएंगे, 1-2 क्लासेस वी विल अरेंज एंड ही विल डेफिनेटली शेयर ऑल द पॉइंट्स। जितने भी आपका डाउट्स है आप कलेक्ट करके रखो, ही विल डेफिनेटली क्लियर ऑल द डाउट्स। एंड उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड पे आते हैं हम लोग। लेट्स कम टू द स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। सी, as I told you, expected time given in the paper on the paper that is written 20 minutes. If you see the previous year paper and also in this particular paper, जब आप 24 जुलाई को जाने वाले हो, I hope एग्जाम 8 से 10 या 10 से 12 के बीच में होगा, ठीक है। तो आपको उस टाइम में फ्रेश अच्छे से जाना है। देखो जो बहुत कुछ चीज़ है जो आपको याद रखना है, जैसे कि एग्जाम से पहले प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। प्रॉपर स्लीप इज मस्ट, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए। उसके बाद जब एग्जाम डे जिस दिन है, आपको एक प्रॉपर मीडियम अमाउंट, ज़्यादा पानी नहीं पीना है, कम नहीं पीना है, एक मीडियम अमाउंट ऑफ या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एडिक्वेट मील इज इंपॉर्टेंट। आपको बहुत लाइट मील नहीं खाने, बहुत ज़्यादा नहीं खाने, एडिक्वेट अमाउंट में खाने। कम खाओगे तो भूख लगेगा, एसिडिटी होगा, और ज़्यादा खाओगे तो वहाँ पे आपको नींद भी आ सकती है, ठीक है। तो आप पूरा फ्रेश रहना चाहिए, यू नीड टू बी फ्रेश इन द एग्जाम बिकॉज यू आर अटेंडिंग सच क्वेश्चंस विच विल डेफिनेटली, देखो RIC का पेपर बहुत इजी है, लेकिन उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जानबूझ के गलती हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे बोलूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, इन द टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर यू विल फाइंड ऑलमोस्ट ऑल द ऑप्शन लुक सिमिलर टू यू, एंड आप उनमें से कोई भी ऑप्शन को मतलब सही मानोगे, लेकिन वी हैव टू चूज दोज ऑप्शन विच आर मोस्ट अप्रोप्रिएट वन और मोस्ट प्रिफर्ड वन। जो NCF ने या NCERT ने जो बोला है, NCERT एग्जाम करा रहा है तो उसने जो चीज बोला है, NCF के थ्रू जो चीज बोला है, जो हमने डिस्कस किया क्लासेस में, स्टडी मटेरियल में आपको मिला है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। सो 30 मिनट्स यू कैन टेक फॉर इंग्लिश। आप 30 मिनट्स दे सकते हो इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में 20 मिनट एक्सपेक्टेड लिखा है, 30 मिनट्स दे सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आप लगभग 6 मिनट दे सकते हो, ठीक है। बाकी 24 मिनट्स जो है उसमें से आप लगभग 16 क्वेश्चन रह गए, 4 क्वेश्चन आपका कॉम्प्रहेंशन से हो गए, ठीक है। इस बार भी आई थिंक 4 क्वेश्चन ही आएंगे, 3 या फिर 4 आते हैं, तो यू कैन गिव 5 to 6 मिनट इन कॉम्प्रहेंशन। उसके बाद रेस्ट आपको 24 25 मिनट्स हैं, उसमें आप
अराउंड 20 और अराउंड 18 टू 20 मिनट 16 क्वेश्चन को दे सकते हो। देखो सबसे ज्यादा टाइम आपको किसमें लगेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। उसके बाद आपका जो एक सीक्वेंसिंग है, सीक्वेंसिंग एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इट विल टेक सम टाइम। सो फॉर वन क्वेश्चन यू कैन गिव 2 मिनट्स। सो इफ एटलीस्ट 2 मिनट्स आपको लेने, अच्छे से पढ़ना है। फॉर वन सीक्वेंसिंग क्वेश्चन यू कैन टेक 2 मिनट्स। सो इफ 2 क्वेश्चंस विल बी देयर देन यू कैन टेक 4 मिनट्स। तो 6 मिनट्स हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, 4 मिनट हो जाते हैं आपके सीक्वेंसिंग के। अगर आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, उसमें से क्वेश्चंस अगर दोनों में से किसी एक में आएगा, आइदर सीक्वेंसिंग से आएगा या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो उसमें से आपका 4 हो गए। बाकी आपका यहाँ पे आपका 6 क्वेश्चन हो गए, रेस्ट 14 questions are there. तो for 14 questions those questions will direct question, like आपका phrasal verb है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, तो उसमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट डेफिनेटली उतना सफिशिएंट होता है। तो आपका 10 मिनट्स इधर हो जाते हैं और 14 क्वेश्चन के लिए आप 14 या 15 मिनट्स ले सकते हो, तो हो जाता है आपका 25 मिनट्स। ठीक है, फॉर 20 क्वेश्चंस आप 25 मिनट्स क्वेश्चन अटेंड करने के लिए कर सकते हो। और बाकी जो 5 मिनट है उसमें आइदर क्वेश्चंस को अच्छे से, मतलब देखो पहले 20 क्वेश्चन को अटेंड कर लेने हैं। ठीक है, मैं अपना सजेशंस आपको बता रहा हूँ कि जो 20 क्वेश्चंस है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के, फर्स्ट अटेंड ऑल दो 20 क्वेश्चंस। डू नॉट फिल द ओएमआर, ठीक है, डू नॉट सर्कल द ओएमआर। ठीक है, ओएमआर सीट में सर्कल करना होता है ना, डू नॉट डू दैट, जस्ट डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर फर्स्ट। एक बार देख लो 25 minutes में try to complete the question in 25 minutes. If you are not able to complete in 25 minutes, you can take around 28-29 minutes also. ठीक है, ट्राई कि 25 मिनट्स के अंदर हो जाए। अगर 25 मिनट्स में आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के सारे क्वेश्चंस या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है लीव दैट, आप बाद में ट्राई करोगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे टाइम में आपको मिलेगा, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 20 क्वेश्चन में जितना आपका बनता है 25 मिनट्स आपको देना है एटलीस्ट। at most नहीं बोलो, at least you should give 25 minutes. After that 5 minutes are there, ठीक है, so you can encircle them. आफ्टर 25 मिनट्स आप जब आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देखते हो तब आप सर्कलिंग करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, ओएमआर को सर्कल करोगे एक साथ 20 क्वेश्चन, जितना वहां पे आपने अगर 16 किया है या 17 किया है या 15 किया है उतना आपको करना है। माइनस मार्किंग इज देयर, एक क्वेश्चन 2 मार्क, अगर गलत करते हो तो -0.5 आपका जो 0.5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 मार्क मिलेंगे अगर करेक्ट करते हो, और गलत करते हो तो हाफ मार्क जो है आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस मार्किंग है, तो जितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, अच्छे से कर पा रहे हो, उसको करना। ठीक है, ज्यादा टाइम मत देना। फर्स्ट राउंड में डू नॉट गिव मच टाइम, गिव 25 मिनट एटलीस्ट, एंड एट मोस्ट आप जो है 30 मिनट्स दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स दे सकते हो। 25 में ट्राई करना। जितना टाइम बचता है अब एनसर्कल करोगे, 15, 16 जितने भी क्वेश्चन कर पाते हो एनसर्कल कर लोगे। अब आप नेक्स्ट सेक्शन में जाओगे। योर नेक्स्ट सेक्शन मे बी रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप रीजनिंग में स्ट्रांग हो, ठीक है, डेफिनेटली अटेंड द रीजनिंग क्वेश्चन, देन इंग्लिश के बाद रीजनिंग का क्वेश्चन अटेंड करो, क्योंकि आपका दिमाग अगर शार्प, मतलब उस टाइम में दिमाग ज्यादा ताजा होता है सुबह के टाइम में। ठीक है, तो आइदर इंग्लिश के करो या फिर रीजनिंग, जिसमें आप ज्यादा मतलब एफिशिएंट हो उसको पहले करो। ठीक है, आप हड़बड़ा के नहीं करना है। क्योंकि मैं इंग्लिश को पहले करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, जब आप इंग्लिश के क्वेश्चंस थोड़ा सा करोगे तब थोड़ा सा रिलैक्स। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब एग्जाम हॉल में हम घुसते हैं तो थोड़ा सा हम क्या एंग्जाइटी थोड़ा बहुत रहता है कि कैसा होगा पेपर। घबराना नहीं है, जैसा होगा हम अच्छे से देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड काम हो जाएगा, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन करके एनसर्कल कर लोगे। ठीक है, ठीक है, आई विल डिस्कस द टाइम। ओके, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस पढ़ के आप एनसर्कल कर लोगे, फिर उसके बाद आइदर आप रीजनिंग स्टार्ट करो या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड। आई विल सजेस्ट कि आप रीजनिंग के क्वेश्चंस कर सकते हो सेकंड, या फिर अगर टीचिंग एप्टीट्यूड आपको अच्छा लगता है तो टीचिंग एप्टीट्यूड से कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू, आप सबके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हो या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है, सो तो आप जैसे पूछ रहे हो टाइम कितना दिया है, टाइम टोटल 2 आवर है, टोटल 2 आवर टाइम इज देयर। ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर कोई सेक्शन के लिए पर्टिकुलर टाइम है, टोटल 2 आवर में करना है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर इंग्लिश कंप्लीट करते हो, नेक्स्ट 40 to 50 मिनट्स के अंदर या फिर 40 मिनट्स के अंदर आप टीचिंग एप्टीट्यूड करते हो या फिर रीजनिंग करते हो, फिर नेक्स्ट 40 मिनट्स के अंदर आप अगर आपका इंग्लिश या सॉरी आपका रीजनिंग या टीचिंग एप्टीट्यूड करते हो, दोनों में से
इंग्लिश पहले कर ली, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड करते हो फॉर एग्जांपल, फिर रीजनिंग करते हो, तो कितना हो गया आपका 40 आपका अगर लास्ट में जितना भी टाइम बचता है एन सर्कल करके एक सेक्शन को कंप्लीट करोगे, फिर ओएमआर फिल करोगे, फिर दूसरे सेक्शन में जाओगे, फिर दूसरे सेक्शन का ओएमआर फिल करोगे, फिर तीसरे सेक्शन में जाओगे, फिर उसको भी करोगे, लास्ट में जितना टाइम बच जाता है उतने टाइम में फिर सेकंड राउंड आप देखोगे, जहां जहां क्वेश्चन आपसे छूटा है ट्राई करोगे उसको करने के लिए, ठीक है। ओके, सो प्रसन्न सर, कैन यू कंटिन्यू नाउ? Yes, sir. Yes, sir. यस, आस्क योर You guys क्वेश्चंस। some doubt? हाँ, सर ये पूछ रहे थे सर, क्या हम लोग ये अगर अगर मतलब कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले ये अपना सॉल्व कर लिए मन में किसका क्या हुआ किसका, सीरियली हम आगे बढ़ गए, उसके बाद सीरियली हम ओमार सीट पे गोल गोल करने लगे, क्या ये कर सकते हैं? हाँ हाँ कर क्योंकि सकते। देखेंगे क्योंकि सर देखेंगे कि सात तीनों पेपर सॉल्व करने के बाद मेरे पास बहुत टाइम बच रहा है, तो हम जो नहीं हो रहा है उसको करके फिर साथ में वो हम सब पे करें, हाँ कर सकते हो। क्योंकि सर सर्कल अगर कर देंगे उसके बाद अगर बाद में ध्यान देते हैं, अगर वो मतलब पता चला सही आंसर, मतलब पहले गलत हड़बड़ी में एंजाइटी में स्टार्टिंग में हो सकता है मे बी, नहीं, तो इसलिए वो गलत कर देंगे तो वो हो ही जाएगा, अगर रुक जाएंगे उसके बाद में अगर करें तो। देखो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना स्ट्रेटेजी बताता हूँ मैं कैसा करता हूँ। अगर ऐसा एग्जाम रहता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस कर लूँ और लास्ट में फिर एनसर्कल करता हूँ आराम से, क्योंकि एनसर्कल करने में कभी कभी हड़बड़ा के करोगे तो बी आपने किया सी पे कभी एनसर्कल हो जाता है, ऐसा होता है। ये तो सर मैं इसलिए पूरा मैं कह रही हूँ, क्योंकि हाँ सर अगर 2 घंटे के एग्जाम में 1 घंटा सवा घंटा या 1.5 घंटा तक अगर बच्चे एग्जाम कंटिन्यू देंगे तो इनका एंजाइटी खत्म हो जाता है। तो देखो एक चीज ये है कि आप आइदर एक सेक्शन को पूरा अच्छे से करके सेक्शन वाइज ओएमआर को भर सकते हो, या फिर आप जैसे मैंने बोला 25 मिनट्स में इंग्लिश कंप्लीट करो, 35 मिनट्स में आप टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करो, और देन 35 मिनट्स में आप अगर रीजनिंग को कंप्लीट कर लोगे तो आपका हो जाता है, आपका लगभग हो जाता है 100 मिनट्स, तो आपको 20 मिनट्स बच जाते हैं। 20 मिनट्स में एटलीस्ट 10 मिनट्स, रिमेंबर दिस थिंग्स, 80 क्वेश्चंस के लिए आपको 8 मिनट एटलीस्ट लग जाएंगे। 8 मिनट्स को आराम से फिल करना है, क्योंकि आपका सारा मेहनत ओएमआर में ही है, ठीक है। आपने जितना मेहनत किया, योर ऑल नॉलेज ऑल लेवर इज इन द ओएमआर सीट ओनली, दैट विल डिसाइड योर सक्सेस। तो ओएमआर को बहुत अच्छे से बहुत ही काम माइंड में भरना है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ओएमआर भरते टाइम आपका दिमाग पूरा ओएमआर के ऊपर होना चाहिए, कुछ और नहीं सोचोगे आप, ठीक है, ओएमआर पे ही ध्यान दोगे। तो वो 10 मिनट एटलीस्ट अपने हाथ पे रखना है ओएमआर फिल करने के लिए, एटलीस्ट 10 मिनट्स। तो अगर आप सारा सेक्शन को एक साथ करते हो देन मस्ट कीप इन योर माइंड कि आप 100 मिनट पे, मतलब 1 घंटा 40 मिनट पे सब कंप्लीट एटलीस्ट कर लोगे। सारे क्वेश्चन जितने भी कर रहे हो 1 घंटा 40 मिनट पे आप एनी हाउ ओएमआर फिल करना स्टार्ट करोगे, मतलब 100 मिनट होने के बाद आप ओएमआर फिल करना स्टार्ट करोगे। 120 मिनट्स का पेपर है, 100 मिनट तक आप क्वेश्चन करो आराम से, उसके बाद आप ओएमआर फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। ये टेक्निक भी कर सकते हो, या फिर एक सेक्शन करके अच्छे से करके जहां जहां आपको श्योर हो वो करोगे, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये भी आप कर सकते हो, जो क्वेश्चन आप 100% श्योर हो जाते हो उस क्वेश्चन में आप ओएमआर फिल कर लोगे सेक्शन वाइज। इंग्लिश का 100% श्योर हो, अगर 12 क्वेश्चन 100% श्योर हो तो उन 12 क्वेश्चन का ओएमआर फिल कर लेते हो। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर 20 क्वेश्चन में 100% श्योर हो, 20 क्वेश्चन फिल कर लेते हो। फिर रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 100% श्योर हो, उसका फिल कर लेते हो। और उसके बाद आप सेकंड राउंड देखोगे, जो जो क्वेश्चन आप कर पाओगे कोशिश करोगे और ओएमआर में फिल करोगे। ये एक टेक्निक हो सकता है। या फिर सारा क्वेश्चन 100 मिनट तक करोगे, उसके बाद ओएमआर फिल करोगे और फिर सेकंड राउंड रीचेकिंग करोगे, ठीक है। दोनों में से जो आपको सही लगता है वो करो, लेकिन कभी भी एक क्वेश्चन करके एक ओएमआर का आंसर फिल करेंगे ऐसा मत करना, इसमें बहुत टाइम लगता है। एक क्वेश्चन पढ़ोगे और तुरंत ओएमआर फिल करने की कोशिश करोगे, देन इसमें क्या होता है, इस हड़बड़ी में इधर देखोगे इधर इसमें बहुत टाइम चला जाता है। एक क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर ओएमआर करोगे, फिर एक को पढ़ोगे फिर ओएमआर, इसमें बहुत टाइम जाता है। तो इसीलिए डू नॉट डू दिस। आई विल सजेस्ट ये जो हमने जो 2 टेक्निक डिस्कस किया, यू कैन अडॉप्ट एनी वन, ठीक है। सो प्रसन्न सर, नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्लेन अबाउट स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं ना होता सर, नीट के एग्जाम की तरह की हर 10 मिनट में आते रहो ना कुछ भरवाने के लिए। नहीं देखो, आपसे 2 चीज आपसे ये करेंगे। एक तो आपको बस आपको, थोड़ा सा हाँ बस आपको एक बार आएंगे, 2 बार भी नहीं। स्टार्टिंग में एक बार आ सकते हैं अगर कुछ सीटिंग अरेंजमेंट को चेक करने के लिए, ठीक है। सीटिंग रोल नंबर वाइज आपने बैठा है कि नहीं वो चेक करेंगे, वो एग्जाम से पहले, एग्जाम स्टार्टिंग टाइम से पहले एक बार आपको चेक किया जाएगा। और सेकंड टाइम आपसे आते भी है तो फिर उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना है। हाँ। आते भी है तो आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, उसमें आपको अपना करते जाना है, उसमें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नीट के टाइम भी होता है
इसके टाइम भी होता है, बट उसमें डिफेक्ट आपको नहीं होना है, दैट इज द एग्जामिनेशन। ओके, अगर आते भी है 3-4 Yes, बार sir. पानी Yes, sir. आपके बगल वाले पानी पियेंगे, वो बुलाएंगे, उसमें आपको डिफेक्ट नहीं होना है, दैट इज द एग्जाम। ठीक है, ओके सर। और सर सर अगर एक जैसे कि सर या तो सेक्शन वाइज या तो कंप्लीट पहले सॉल्व करके फिर हम लोग अगर ओएमआर शीट फिल करेंगे तो सर तो हम सर किसका क्या आंसर सिलेक्ट किए तो पेंसिल से सर हाइडन करके पॉइंट आउट कर सकते हैं क्या? नहीं उस पे तो वो लोग नहीं ना ये बोलेंगे कि ये आपने क्यों हाइडन किया, ऐसा कुछ भी। क्यों क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना, इसमें टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा सकते हैं, बट मैं बोलूंगा कि पेन से कोई भी मतलब कि वो मत करना, वो थोड़ा सा मतलब कि इन लोग का मतलब कि अनएथिकल माना जाता है, मत करना। पेंसिल से कर सकते हो, रफ वगैरह कर सकते हो, बट पेन से यूज मत करना वहाँ पे। नहीं सर पेन से नहीं सर, पेंसिल से रफ करना है, उसको फिर से रफ करना होगा, तुमको फिर से पेन से फिल करना, दैट इज टाइम वेस्टिंग ओनली। तुम एक काम करो, एक सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 क्वेश्चन में आपका 12 क्वेश्चन आता है, 12 क्वेश्चन का एक सेक्शन हो गया, 12 क्वेश्चन का पहले भर लो। 8 क्वेश्चन आपको नहीं आता है, यू विल सी लेटर, बाद में देखिए, उसके बाद रीजनिंग है, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, जितने क्वेश्चन आते हैं उसका पहले करो, भरो, उसके बाद आपका जो नहीं आता है उसकी तरफ ध्यान दो। किसी भी क्वेश्चन को लेकर लड़खड़ाना नहीं है। देखो जैसे कि इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा सा सोचने से आता है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा सोचने पे आएगा, तो आपसे कैलकुलेट करना होगा। रीजनिंग में ऐसा होगा, कैलकुलेटर करना होगा, नहीं तो फिर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है जिससे आपको आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके लिए भी मैं बोलूंगा क्या करना है। अगर तुम्हारे पास एक अटेम्प्ट है कि मुझे 140 मार्क्स मुझे अटेम्प्ट करके आना है, 140 मार्क्स मुझे लाना है, तुम देख रहे हो क्या कि तुम आराम से 150 क्वेश्चन मतलब कि मार्क्स तुम श्योरली अटेम्प्ट किए हो, उस टाइम पे तुम नेगेटिव मार्किंग की तरफ मत जाना। नेगेटिव मार्किंग इन द सेंस मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर मान लो उस टाइम पे तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको 3 ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये 3 सही हो सकता है, तो उसमें आप बिल्कुल भी मतलब उसमें बिल्कुल मत फंसना। रीजनिंग का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन होगा तो फिर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी जिसमें भी नहीं, जैसे कि ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, ये सब टॉपिक का तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है कॉन्फ्यूजन का, ठीक है, उसमें तो एक ही आंसर आना है, आपको अगर टाइम दोगे तो फिर आ जाएगा। बस एक यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम। मैं अगर 2 घंटे में एक क्वेश्चन पेपर के अटेम्प्ट कर रहा हूँ 160 में, मेरा हो सकता है 100 आ रहा है, मैं उसको 4 घंटे में अटेम्प्ट करूंगा 120 आ जाएगा, मैं उसको 6 घंटे में अटेम्प्ट करूंगा मेरा 140 आएगा। बट द कॉम्पिटिशन इज हाउ मच लेस टाइम यू आर टेकिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, जितने कम टाइम में जितना सही आप कर सकते हो दैट इज योर एग्जाम। 2 घंटा टाइम है आपके पास, 80 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इतना कम टाइम में जितना सही क्वेश्चन आप करोगे यू विल बी राइट। और यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं है, इतना कट ऑफ आपका 4 सीट है, 4 सीट में से आपको एक बनना है, दैट इज द मेन चैलेंज, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है कि सर बार बार लड़के पूछते रहते हैं या फिर स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर व्हाट विल बी द कट ऑफ, व्हाट विल बी द, यहाँ पे कोई भी कट ऑफ नहीं है, ठीक है। मेरे टाइम पे लाइक हम लोग के टाइम पे, सर के टाइम पे, मेरे टाइम पे 128 + 30 वाज द सेफ, isn't it sir? 128 130 was the safe point. Yes, yes, Even yes. being 80 or 85 in the board, 80 or 85 in the board, but now the competition has been completely changed. ये 2 साल में बोर्ड जितने नंबर दिए हैं 95, you will be competing, जो अंडर ग्रेजुएट है 12 का बात कर रहा हूँ मैं, you will be competing with 96-97% मिनिमम स्टूडेंट, तो आपका है, तो उसको वो 40% से आपको उसको बिछड़ना है सीई में, क्योंकि सीई में आपका 60% से वेटेज है, तो उसमें आपको मिनिमम 10 से 15 नंबर का गैप आपको लेना है, तभी जब आपको सीट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल सोचना नहीं है कि 140 क्वेश्चन मैंने कर दिया है तो क्या करना, आपको एक मिनिमम आइडिया रखना है कि 140 मार्क्स मुझे करना है, दैट इज ओके, बट जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको क्वेश्चन करना है, अवॉइडिंग द नेगेटिव मार्क्स, आपको उतना करना है, ठीक है। लेकिन बहुत जनरल बात जो सर बताया पहले कि एग्जाम के दिन के पहले बहुत हड़बड़ नहीं करना है, मोशन सिकनेस के में एकदम जाना नहीं है, बस में या फिर जिसमें भी जा रहे हो उसमें एकदम बिल्कुल पढ़ना वढ़ना नहीं है, यू नो एवरीथिंग, ठीक है, तुमको कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम जानते हो सब कुछ, किसी भी ओवर कॉन्फिडेंट लड़का हो या फिर एग्जामिनेशन पे किसी को देख के घबराना नहीं है कि वो मेरे से ज्यादा जानते, किसी भी, तुम 100% तुम खुद कॉन्फिडेंट हो, तुम प्रैक्टिस करके आए हो, ठीक है। 1 साल का जो तुम्हारा मेहनत है वो 2 घंटे में निकलने वाली है, ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा नहीं होता है कि 1 साल फाड़ के मेहनत किया है और 2 साल में वहां पे 2 घंटा जाके नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका 2 घंटा वहां पे अच्छा जाएगा, ही विल बी द सिलेक्टर, वो वहां पे सिलेक्शन उसका
बार बताता हूँ, कल क्लास में भी मैं डिस्कस किया हूँ कि कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, नहीं करना है। कैलकुलेटिव पार्ट को जितना जितना प्रैक्टिस किए उतना आएगा, ठीक है। जितना स्पॉट तरीके से कर सकते हो आप उतना स्पॉट तरीके से करना। बाकी रीजनिंग पार्ट आपका अगर मकसद है तो फिर उसमें आप 30 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट लो, ठीक है। 45 मिनट इनफ, क्योंकि बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको टाइम कम लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है जो जिसको आपको टाइम लगेगा। जैसे क्रिकेट में नहीं होता है कि कुछ बॉलर्स को आपको इज्जत दे के खेलना है, कुछ बॉलर्स को मार सकते हैं, वैसे ही कुछ क्वेश्चन को आपको इज्जत देना है, एकदम बिल्कुल इज्जत देना है, ठीक है। उसको आपको नहीं है कि ठीक है मैं जल्दी से कर लूंगा, ये जो क्वेश्चन इज्जत मांगता है उसको इज्जत देना है, बिल्कुल इज्जत देना है, ठीक है। जो क्वेश्चन इज्जत नहीं चाहिए वर्बली सॉल्व हो सकता है, ठीक है, एकदम उसको वर्बली सॉल्व करके निकल जाना है। जो क्वेश्चन नहीं हो सकता है, कैलकुलेशन का टाइम लगेगा, उसको इज्जत से कैलकुलेशन करो, ठीक है। जो भी आपका ट्रिक आता है, स्क्वायर क्यूब का ट्रिक है, कैलकुलेटिव का ट्रिक है, मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है, ठीक है, जिससे आपको लगता है कि ये होगा वैसे ही होगा, ठीक है। कोई भी मतलब हड़बड़ाने का चीज नहीं है, ओके। बाकी 2 घंटा वहां पे जैसे सर बोले सेक्शन वाइज करो अपना, सेक्शन एक इंग्लिश का खत्म हुआ उसका और फॉर्म फिलअप कर दो, सॉरी ओएमआर फिलअप कर दो, रीजनिंग का कर दो, फिजिक्स का कर दो, ठीक है। 80 क्वेश्चन, 80 में 70 आपको बिल्कुल बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 क्वेश्चन में आप अटक सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ, गिन के बता दे रहा हूँ। 5 क्वेश्चन में आप अटक सकते हो, 5 क्वेश्चन पर आपका टाइम लगेगा। जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस करवाया, सर ने प्रैक्टिस करवाया, जिस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया गया, 70 क्वेश्चन आना ही आना है, आप कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता वहां पे आपको। 70 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली करके आना है, 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन होगा। वहीं पे आपको डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्रिएट करेगा कि कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे छूटेगा। 5 क्वेश्चन में जो एक गलती करके आएगा उसका 2.5 मार्क्स कट जाएगा, जो एक सही करेगा वो 2 मार्क्स आगे बढ़ जाएगा। हमें क्लियर? बाकी पूछो रीजनिंग से कोई भी दिक्कत। एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक जितना एग्जाम पास आ रहा है, आई एम बी नॉस्टैल्जिक टू माय टाइम। मैं खुद नर्वस फील कर रहा हूँ कि कैसे होगा लाइक योर सक्सेस और योर लाइक व्हाटएवर यू विल ब्रिंग, दैट इज माय सक्सेस, ओके। बाकी पूछो आप लोगों को क्या पूछना है रीजनिंग सेक्शन में से, कुछ पूछना है? स्टूडेंट्स, बाकी एक दो टॉपिक बचा हुआ है, आई विल कवर दैट। हाँ बोलो। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि जितना yes, yes. मतलब जितना मेहनत आप नहीं कर रहे, मतलब आपको लग रहा होगा कि मतलब कुछ कुछ जगह पे शायद हम टाइम नहीं कर पा रहे, लेकिन जितना इस एग्जाम मतलब एग्जाम आप लोगों के लिए जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोगों के लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम 2 साल से, ठीक है, मैं इवन अगर बोलेंगे तो 3 साल से लगभग, ठीक है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं। 2 साल से हमने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट किया है। पिछले साल हमने इतना मेहनत किया था, एग्जाम कैंसिल हो गया, ठीक है। आपको मतलब जो एग्जाम दिए होंगे उनको जितना नहीं ये होगा, उससे ज़्यादा हमको ये लगा, क्योंकि जो मेहनत हमने किया था, जो खून पसीना बहा के बोल सकते हो। इवन मतलब याद है वो दिन जहाँ पे मतलब पूरा फैन नहीं चला सकते थे क्योंकि आवाज़ नहीं आएगा, तो बिना फैन के गर्मी के टाइम में हम क्लास करते थे, ठीक है। तो ऐसे टाइम में तो आप लोगों के लिए जितना इंपॉर्टेंट, जितना वेट आप लोग नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा हम वेट कर रहे हैं उस दिन का कि कब एग्जाम हो जाए। हम लोग प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे हम लोग मतलब एग्जाम आपका हो जाएगा, आप लोग सक्सेस होंगे, डेफिनेटली सक्सेस होंगे, क्योंकि हम लोग जितना मतलब इस चीज़ के लिए हम लोग स्टार्टिंग से जितना कर रहे हैं, और कोई नहीं, मतलब कि कोई आपको मतलब ऑल इंडिया में कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है, कोई नहीं होगा जो इतना आपको कर रहा होगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। और दूसरा चीज़, हाँ, आपका इस एग्जाम में कंपटीशन, वही मेहनत हम लोग का रंग लाएगा जब मैं जैसे कि आरआई में हूँ अभी भी, सर आरआई आते रहते हैं, हम लोग डिफरेंट आरआई भी विजिट करेंगे, तो जब वहाँ पे आप लोग रहेंगे और हम लोग से मिलेंगे, जब हम लोग जाएंगे तो मिलेंगे, वो टाइम का सोच के हम लोग ये मेहनत करते हैं कि तब हम लोग को कितना खुशी लगेगा, ठीक है। वो टाइम हम लोग को अभी भी लगता है कि जब वहाँ पे आप लोग होंगे तो फिर तो हम लोग का ये जो भी मेहनत है, ठीक है, वो जब आप लोग आरआई पे होंगे तो फिर दैट विल ब्रिंग अस टू द सक्सेस। यस, डेफिनेटली आप लोगों को हम विजिट करने के लिए जाएंगे। आप जिस भी आरआई में होंगे, हम डेफिनेटली आपके पास जाएंगे आपसे मिलने के लिए। तो हम चाहते हैं कि यू शुड डेफिनेटली ट्राई, बिकॉज हम लोग ट्राई कर रहे हैं। एंड आपका सिलेक्शन हमारा भी सपना है, ठीक है, आप लोगों का सिलेक्शन हमारा भी एक सपना है कि कैसे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना कि मतलब जितना मेहनत स्टार्टिंग से हमने किया हुआ है। और एक और चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे ऐड करूँगा कि जो हमने डिस्कस किया क्लासेस में, ठीक है, कभी कभी क्या होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कुछ क्वेश्चन लाइक आंसर की में कुछ क्वेश्चंस गलत दिखते हैं, कोई दूसरी किताब में देखो कि हमने जो पढ़ा है उसका आंसर की अलग है। तो आप बस एक चीज़ को याद रखना, जो हमने डिस्कस किया लॉजिकली,
दैट विल बी द करेक्ट आंसर। लॉजिकली जो हमने डिस्कस किया हुआ है एनसीएफ को याद करते हुए, दैट विल द करेक्ट आंसर। एंड व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, थिंक यू एज ए टीचर। ठीक है, अगर आपको एज ए टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन विल बी देयर कि जहां पे आपको एज ए टीचर आंसर करना है। एज ए स्टूडेंट वाला क्वेश्चंस हो सकता है कभी एक पूछ ले, बट ऑल द क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस या इवन यू कैन से 99% क्वेश्चन विल बी देयर वेयर यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस एज ए टीचर। सो इस चीज को याद रखना, अगर आप एक टीचर हो तो कैसे सॉल्व करते, एंड थिंकिंग इन द माइंड दैट व्हाट एनसीएफ टेल्स। ठीक है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो हमारे स्टडी मटेरियल में, जो हमने क्लासेस में डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग हमको सर जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे सर बोले कि आप, मैं अभी आपको बोला कि इंग्लिश में आप 30 मिनट्स ले सकते हो, रीजनिंग में आप मैक्सिमम 45 मिनट्स ले सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में मैक्सिमम 30 मिनट्स, रीजनिंग में 45 मिनट्स, तो आपका हो जाता है 75 मिनट्स। और आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन 1 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर तो डायरेक्टली एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, डायरेक्टली पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन, इफेक्टिव टीचर वाला क्वेश्चंस होगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। द आंसर उसमें छुपा होगा। कुछ कुछ जो कीवर्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया, दोज कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कीवर्ड से लगभग 10 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, और जो वो क्वेश्चन को आप फटाक से सॉल्व कर लोगे, उसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा, विद इन 30 सेकंड्स आप सॉल्व कर लोगे। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हुए, जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बोलेगा कि एक, जैसे एक आपका क्वेश्चन था, एक किस दो टीचर थे, एक टीचर का अलग सिनेरियो था, दूसरा का अलग सिनेरियो था, कौन बेस्ट है, इस तरह का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर पैराग्राफ है तो उसमें अच्छे से पढ़ना है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो होता है उसमें 1-2 मिनट लग सकता है। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन जो डायरेक्टली कीवर्ड के अंदर से आ रहा है, वो आपको विद इन 30 सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका 35 मिनट्स में आपका हो जाएगा आराम से। और उसके बाद इतने टाइम बचते हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, सेकेंड राउंड आप देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन हमसे छूट गया है, हम फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाए तो सेकेंड राउंड में उसको करेंगे। ठीक है, मतलब सेकंड राउंड कहने का मतलब फर्स्ट एक बार सब कुछ कर लो, जितना आप जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर हो उसको अच्छे से कर लो, बाकी फिर आप नेक्स्ट जो है फिर से एक बार जो है क्वेश्चंस को देख के जो क्वेश्चंस बन पा रहा है उसको आप एनसर्कल कर सकते हो। ठीक है, जैसे सर बोले कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा टाइम आपसे मांगेंगे आपसे, सो टू दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस यू कैन गिव द टाइम आफ्टर एनसर्कलिंग फर्स्ट राउंड का आंसर को आप एनसर्कलिंग करने के बाद दोबारा जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है जिसमें बहुत टाइम लग रहा है, 1-1.5 मिनट आप दे चुके हो, इवन 2 मिनट्स यू हैव गिवन, बट उसको क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस you can skip that question at that time and you can solve other questions and then reattempt the questions after completing all the questions। इस तरह से कर सकते हो। उस क्वेश्चन को जब आप स्किप करके जा रहे हो तो उस क्वेश्चन को दिमाग में लेके नहीं जाना है। ठीक है, आप जब कभी भी नया क्वेश्चन आएगा तो मतलब पिछला वाला क्वेश्चन को भूल जाओ, और दैट इंस्टेंट पिछले वाले क्वेश्चन को भूल जाओ। जब आप फिर से उसको रीअटेम्प्ट कर रहे हो तब सोचो मतलब उसके बगल में रफ तो होगा, उसको सोचो कि कौन सा अप्रोच लगाए थे और कौन सा अप्रोच लगाना बाकी है। जैसे कि हम लोग फॉर ए कॉमन टॉपिक मिसिंग नंबर में एक अप्रोच से मैं नहीं मानता हूँ कि एक अप्रोच से सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि एक अप्रोच से अगर सॉल्व हो जा रहा है तो फिर दैट अप्रोच इज योर दैट करेक्ट अप्रोच इज योर फर्स्ट अप्रोच। देयर आर मल्टीपल अप्रोच, तो यू हैव टू ट्राई दैट द करेक्ट अप्रोच इज योर फर्स्ट अप्रोच। अब नहीं भी हो सकता है, हो सकता है कि करेक्ट अप्रोच आपका सेकंड अप्रोच हो, थर्ड अप्रोच हो। इसी हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को पीछे छोड़ जाओ और भूल जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दे जाओ। ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा नहीं होगा। आप उसको सॉल्व करो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ो, आगे क्वेश्चन करो। जैसे कि मिसिंग नंबर हो गया आपका, रैंकिंग तो आ जाएगा। मिसिंग नंबर सीरीज ये जो अप्रोच वाले क्वेश्चन है वही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकता है। नहीं देखो, ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने नहीं करवाया, इवन मैंने बहुत ज्यादा टॉपिक करवा के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एग्जाम के पॉइंट में आएगा, एग्जाम में आएगा, उसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं किया। तो आपको पता सब कुछ है, बस उसको उस टाइम पे एम्प्लॉय करना है, बस दैट्स इट। बाकी सर यस कंटिन्यू। So if you have any doubt students you can ask, आपका कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, then we will again clear your doubts। यस एनी डाउट्स यू कैन। सर जैसे 2 साल से एग्जाम नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटीज है ना कि टीचिंग एप्टीट्यूड में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन 2 सालों में कैसे स्टडीज अफेक्टेड हुई या फिर क्या सॉल्यूशंस हो सकते थे? नहीं, the effect and solution related questions may not come in the exam, but the questions from new education policy will definitely come. You can say most probably will come in this exam. Most probably the questions from
न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल कम, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कुछ चीज आप डेफिनेटली पढ़ के जाना। कोविड अफेक्टेड टाइम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोविड अफेक्टेड टाइम में विच मीडियम ऑफ एजुकेशन वाज द मोस्ट एफिशिएंट वन, तो दैट विल बी योर ऑनलाइन मोड एंड यू कैन क्वेश्चन में भी आईसीटी के ऊपर से हो सकता है कि विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड, देन दैट विल बी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो सॉल्यूशन तो आपका आईसीटी ही होगा ऑनलाइन मोड में, तो आ सकता है तो इस तरह का आएगा, नहीं तो उस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड इज फॉर टेस्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट ए टीचर कैन डू और व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर, ठीक है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है। एटीट्यूड ऑफ टीचर का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स के प्रति, एजुकेशन के प्रति, सोसाइटी के प्रति एक टीचर का क्या एटीट्यूड है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एप्टीट्यूड, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। बाकी जो आप पूछ रहे हो उसके अगर क्वेश्चन आता है तो आईसीटी या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर से आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। यस, एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क। सर क्लास में वॉच मान के जा सकते हैं क्या? क्लास वॉच मतलब एग्जाम हॉल में वॉच मान के जा सकते हैं 1 आवर के बाद? नहीं सर, रिस्ट वॉच की बात कर रहे हैं। अच्छा, yes, एडमिट कार्ड में आ जाएगा। हाँ, तो आप इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन इन द, आप स्टैंडर्ड वॉच लेके जा सकते हो, ठीक है। आप जो है ब्लूटूथ या फिर आपका जो स्मार्ट वॉच लेके नहीं जा सकते। मोस्ट प्रोबेबली इंस्ट्रक्शन तो कल ही आ जाएगा कि क्या क्या आप लेके जा सकते हो। आई थिंक रिस्ट वॉच विल बी अलाउड, जो नॉर्मल वॉच होता है जिसमें कोई ब्लूटूथ या कोई स्मार्ट चीज डिवाइस कुछ नहीं है वहाँ पे, दैट विल बी अलाउड मे बी मोस्ट प्रोबेबली। बट इफ अगर वॉच अगर अलाउ नहीं करते हैं देन वो क्लासरूम में डेफिनेटली जहाँ एग्जाम हॉल जो होगा उसमें डेफिनेटली आपके जो है वॉच लगा हुआ होगा, ठीक है। वॉल क्लॉक आपका रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बता रहा हूँ, सामने एकदम सामने सबके विजिबल में रहेगा। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि आपके सर पानी पीने के लिए तो मिलेगा ना सर? यस पानी आपको मिलेगा, वो खुद ला के आपको पानी देंगे। बट आई विल सजेस्ट कि टेक ए स्मॉल वाटर बोतल, ठीक है। आप एक छोटा सा वाटर बोतल लेके जा सकते हो अगर वहाँ पे पानी नहीं मिलता या फिर वाटर बोतल लेके चले जाना। हाँ अभी क्योंकि अलाउ है तो ले। हाँ अभी क्योंकि कोविड फिर से बढ़ रहा है, ठीक है। आई विल सजेस्ट कि अभी कोविड फिर से बढ़ रहा है तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आपके मास्क या फिर इवन हैंड ग्लोव्स हो सकता है वो आपको मैंडेटरी कर दें, एक आपका सैनिटाइजर छोटा सा 50 ml का, या फिर एक आपका पानी बोतल। ये आपको वहाँ पे आई थिंक वो मेंशन करेंगे कि यू कैन ब्रिंग दिस थिंग्स अलोंग विद योर एडमिट कार्ड। आई थिंक सर ये वाला बात नीट के एडमिट में लिखा हुआ है कि मास्क आपका खुद का लेने के मतलब कि लेके जाने के लिए नहीं देगा, वो लोग मास्क प्रोवाइड करेंगे। तो आई थिंक एनटीए करवा रहा है तो फिर सीए भी हो सकता है कि मास्क प्रोवाइड करेगा। तो दिस इंस्ट्रक्शन विल लाइक कम इन द एडमिट कार्ड इटसेल्फ। एडमिट कार्ड में सब कुछ बताया रहेगा कि मास्क लेके जाना है या फिर वो लोग प्रोवाइड करेंगे, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ वो लोग बता देंगे, ठीक है। हाँ बट एक्चुअली क्या होता है कि मतलब आरआई का जो एग्जाम है, ठीक है, ये एनसीईआरटी करता है ना, तो उसमें क्या हो सकता है कि क्योंकि एनटीए नहीं कर रहा है तो उसमें ये ऑफलाइन बेस्ड एग्जाम है, तो उस केस में मास्क वो इंस्ट्रक्शन में कल पता चल जाएगा हम लोगों की मास्क आपको खुद का लेके जाना है या वहाँ प्रोवाइड करेंगे। और इज एनी ड्रेस कोड में वही आपका जिसमें ज्यादा बटन वगैरह ना हो ऐसा हो सकता है। आई थिंक उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन आ रहेगा एग्जाम में नहीं रहेगा, लेकिन देखते हैं कल वो ड्रेस कोड वगैरह कल पता चलेगा। आपको एडमिट कार्ड के साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना होगा, एडमिट कार्ड के साथ एक आधार कार्ड या कोई और आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो तो कल आएगा, फिर हम लोग मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कल, ठीक है। यूट्यूब में एक वीडियो बना के मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज आपको लेके जाना है। अब अभी यहाँ पे डाउट्स जो है आप पूछो एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया, 30 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 45 मिनट्स फॉर रीजनिंग एंड 35 मिनट्स फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इस तरह से आपका हो जाता है आपका 110 मिनट्स, तो 10 मिनट्स बच जाते हैं, उसमें आप रिवीजन कर सकते हो, एक बार रीचेक करके सेकंड राउंड के हिसाब से देख सकते हो। एनी अदर डाउट्स? सर एग्जाम के लास्ट 2-3 डेज कैसे मतलब कि अपने आप को रखना है, टाइम मैनेजमेंट, प्रिपरेशन, वो सब के लिए मतलब कि कुछ सिली मिस्टेक्स ना हो सर, आप एज पर योर एक्सपीरियंस जो हम लोग को नहीं करना चाहिए। देखो अभी क्या है कि आपको
एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन नहीं करना है, ठीक है। अभी से ही प्रिपरेशन अच्छे से करो, जितना भी आपको वीडियोस मिले, अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो देखो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस अटेंड करो, जहां पे आपको गलती लगता है आंसर की में एरर है कुछ भी है आप ग्रुप में पूछो डायरेक्टली, और अभी से मतलब कंटिन्यूस प्रिपरेशन करो। लास्ट 2-3 डेज में हम एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। कुछ कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि हम लास्ट डे पे प्रिपरेशन करेंगे, लास्ट 2-3 दिन में हम बहुत प्रिपरेशन करेंगे, सब रट के जाएंगे, दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे जो डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपसे आगे चले जाएंगे। तो लास्ट 2-3 डेज में थोड़ा आपको कम पढ़ाई करना है, मतलब रिवीजन ज्यादा करना है, नया चीज नहीं पढ़ना है, जितने पढ़े हो रिवीजन करना है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 20 तक कुछ अगर नहीं पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गुररक्षित सर बोल रहे थे कुछ आप वहाँ पे कुछ प्रोवाइड करेंगे, तो वो अगर नया चीज़ है फॉर एग्जाम्पल आपके लिए, तो वो क्या करोगे, वो आप वहां तक पढ़ लोगे, उसके बाद सिर्फ रिवीजन करोगे। आइदर वीडियो से रिवीजन करना है करो, स्टडी मटेरियल से करना है करो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस रिवाइज करना है करो, लेकिन उस टाइम में सिर्फ रिवीजन करोगे एंड काम माइंड में, ठीक है, अच्छे से काम माइंड में रिवीजन करोगे। और एग्जाम 21, 22, 23 इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आओगे। आपका हेल्थ सही होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस में आओगे सर दर्द होगा, और भी हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सकता है बैलेंस डाइट खा के बैलेंस्ड वे में रहना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हो 10 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 8 घंटा पढ़ो, ज़्यादा इंक्रीज मत करना लास्ट 2-3 डेज में, ठीक है। लास्ट 2-3 डेज में जितना मतलब बैलेंस्ड वे में पढ़ाई कर सकते हो वो करो। और एग्जाम के पहले दिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है, 10 बजे से पहले 10 बजे तक एटलीस्ट सो जाना है, क्योंकि सुबह एग्जाम होगा। एग्जाम कल तो पता चल जाएगा कितने बजे एग्जाम होगा, अगर सुबह होता है तो 10 बजे तक सो जाना है। आफ्टरनून में चांस बहुत कम है, सुबह ही होगा। अगर आफ्टरनून में होता है तो फिर मैं उसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन करूंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम सुबह होगा तो 10 बजे तक ट्राई करो, 10-11 बजे तक मैक्सिमम सो जाओ, 4-5 बजे तक उठने का कोशिश करना है। सुबह आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो, थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो, स्टडी मटेरियल के कुछ चीज़ देख सकते हो जहाँ पे आपने अंडरलाइन किया हुआ है, कुछ कीवर्ड्स देख सकते हो जो आपने राइट डाउन किया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हो। यस, एडमिट कार्ड जो है कल आ जाएगा, ठीक है। तो आप एग्जाम के पहले दिन सुबह उठ के थोड़ा सा देख सकते हो। एग्जाम हॉल में टाइमली पहुंचना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में जो टाइम होगा उससे पहले आधे घंटे पहले पहुंच जाना है, और एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद पहले थोड़ा सा रेस्ट करना है, काम करना है अपने माइंड को। वहां पे ज्यादा पढ़ाई बड़े हड़बड़ी नहीं करना है, काम माइंड में देखना है कि आपने सब कुछ लाया, आपके पास सब कुछ है कि नहीं, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब एडमिट कार्ड और आपका आइडेंटिटी प्रूफ। फिर उसके बाद आपका सीट कहाँ पे पड़ा है वो जाके बोर्ड वहाँ पे लगा होता है, नोटिस बोर्ड, वहाँ पे जाके देख लेना है। ये सब बेसिक चीज जो है वो आप उस दिन को आपको फॉलो करोगे तो आपका माइंड शांत रहेगा, और जितना शांत रहेगा उतने एफिशिएंटली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जितना हरीडली आप चीजों को करोगे उतना खराब होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा पूरा, जैसे गुररक्षित सर बोल रहे थे, ठीक है। टाइम प्रॉपर्ली देना है, बिल्कुल पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी चीज में पैनिक बिल्कुल नहीं करना है आपको। यस, एज ए नॉर्मल अच्छा ही जाएगा, जैसे आप लोग प्रिपरेशन लियो अच्छा ही जाएगा उसमें। हाँ बोलो सर, मॉक टेस्ट में मार्क्स ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहा है। मॉक में मार्क्स ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहा, दिस इज अ कंसर्न ऑफ एवरीवन। तो मॉक में मार्क्स देखो, मॉक टेस्ट इज लाइक, ऐसा नहीं है कि मॉक का लेवल का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा दैट का बाद का क्वेश्चन है। मॉक में आपको क्या करना है, आपका बॉडी को रिएक्ट करवाना है। देखिए क्वेश्चन के टाइप तो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कॉमन आ सकता है, क्वेश्चन जितना तो प्रैक्टिस किए हो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेवल जो किए हो उससे बाहर नहीं। लेकिन मॉक जब दे रहे हो, ठीक है, आपका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको आप स्ट्रेटेजिकली करते रहो, स्ट्रेटेजिकली करते रहो। अभी भी आपका बहुत मॉक बचा हुआ है, अभी भी वी विल सर कितना हुआ है 19 शायद, वी विल प्रोवाइड अभी के 10-11 हम लोग देंगे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉक में इंप्रूव करने के लिए मैं बता रहा हूँ, मॉक में मार्क्स इंप्रूव मत देखो, ठीक है। मॉक में मार्क्स इंप्रूव मत देखो, मॉक में एक चीज देखो कि कितना टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा ठीक हो रहा है और बॉडी तुम्हारा कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको नहीं करना है, ठीक है। मॉक में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ना है। इफ यू आर स्कोरिंग 120 एट द मॉक फिर भी ठीक है, बिकॉज रीजनिंग का मैं जानबूझ के बहुत ज्यादा थोड़ा सा हाई लेवल करके मैं रखा हूँ, बिकॉज ताकि वहां पे आपको दिक्कत ना पड़े, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चन आएगा एंड यू कैन आराम से डू दैट, आराम से डू दैट। तो मॉक का लेके कोई टेंशन नहीं लेना है। मॉक इज अ सिमिलर टाइप ऑफ, हम लोग बॉडी रिएक्ट एंड आपका ऑनेस्टी या टाइम मैनेजमेंट देखने के लिए दिया है। मार्क्स लेके बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, मार्क्स लेके बिल्कुल टेंशन नहीं करना है। मॉक आप लोग को इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप मार्क्स देखो उसका, ठीक है। मॉक्स आप लोगों को अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जाम को इंप्रूव करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं मॉक। मॉक का नंबर लेके अगर तुम टेंशन में आ जाओगे तो कुछ दिक्कत है। ऐसा बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि मॉक में मेरा 120 आ रहा था मैं 1 समथिंग लाऊंगा कैसे। मॉक में मैंने
यस सर। आई बात समझ में? ओके, और बताओ। देखो एक और चीज ये है कि आपका इंग्लिश का क्वेश्चन, जैसे आप लोग बोल रहे थे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा हाई लेवल पे दिया गया है, ठीक है, उस टाइम में, क्योंकि हमको जितना पता है कि RIC एग्जाम का एक पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अगर हो देखो 2 साल अभी एग्जाम नहीं हुआ है, तो मान लो ऐसा होता है कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके थोड़ा सा हाई लेवल देते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले क्या था कि जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थे वो कम थे, ठीक है, आपके 80,000 अप्रॉक्स इस तरह से रहते थे। अभी जो एस्पिरेंट होंगे नंबर उनका 1 लाख 1.5 लाख, इवन आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार 2 लाख एस्पिरेंट एग्जाम देने वाले एज पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि एग्जाम का डेट जो है 30 जून तक था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स होगा वो डबल हो जाएगा प्रीवियस 2 इयर्स में जो था, ठीक है। तो आई थिंक कि वो एग्जाम का जो लेवल है थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, बिकॉज एस्पिरेंट ज़्यादा है, तो उसमें से उनको चुनना है। अगर सबका इजी क्वेश्चन देंगे तो लगभग सब लोग का मार्क्स सेम हो जाएगा, और क्योंकि कोविड में एग्जाम नहीं हुआ था CBSE का, तो बहुत मार्क्स दिए गए थे सबको, तो सबका 99-95% इस तरह से मैक्सिमम लोगों का सिमिलर परसेंट है, तो वहाँ पे सिमिलर परसेंट, और RI का एग्जाम अगर बहुत आसान होगा तो वहाँ पे सिमिलर परसेंट, तो वो फिर सबका जो है मार्क्स जो है सेम हो जाएगा। तो ये चीज भी वो देख के थोड़ा सा हाई लेवल का दे सकते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो थोड़ा सा हाई लेवल का दे सकते हैं, जो कन्वेंशनल पैटर्न चल रहा था उसी पैटर्न में थोड़ा सा हाई लेवल का दे सकते हैं। इसीलिए हमने 2 ईयर बीएड और आपका एक साथ करवाया है, लेवल सबका एक साथ करवाया है, क्योंकि अगर हाई लेवल का देता है तो ज्यादा कंपटीशन इंटीग्रेटेड बीएड में है, 2 ईयर बीएड में ज्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितने भी 12 पास आउट सब लोग देते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेटेड का जो है स्कोप ज्यादा होता है, तो इसीलिए इंटीग्रेटेड RI में इंटीग्रेटेड के लिए फेमस है वो, तो वहाँ पे इसीलिए इंटीग्रेटेड का क्योंकि ज़्यादा ही है, तो उसमें ज़्यादा कंपटीशन रहता है इंटीग्रेटेड में, और इंटीग्रेटेड के केस में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। CBSE या स्टेट बोर्ड भी आजकल बहुत मार्क्स दे रहा है, तो क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्क्स होते हैं आपके कैरियर का, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे लेवल थोड़ा हाई कर सकते हैं। लेकिन 2 ईयर बीएड का वो तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन लेवल बोलता है, लेकिन वो पूछता है आपका 10th लेवल से है, रीजनिंग मैक्सिमम आप कब तक 10th तक ही पढ़ते हो, तो लेवल तो वही रहता है, क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का SSC वगैरह लेवल का वो वहाँ पे कर सकता है, ठीक है। लेकिन मतलब वो रेयर चांस है, SSC लेवल का सॉरी वो नहीं करेगा, मतलब वहाँ पे जो क्वेश्चन जो कन्वेंशनल पैटर्न में वो आ रहा था उससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन SSC लेवल तक का भी नहीं जाएगा। प्रिपरेशन हमने उस हिसाब से लेकिन किया हुआ है, अगर इसीलिए क्वेश्चंस में भी इसीलिए आपको इस तरह से थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आपको मिलता है। यस सर, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए इंटीग्रेटेड वालों का प्रीवियस ईयर है सर या 2 ईयर वालों का है? सबका है, देखो मिक्स्ड है, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि इस बार जो है थोड़ा सा लेवल जो है चेंज हो सकता है, थोड़ा हाई हो सकता है, तो अगर आप लोग मान लो इंटीग्रेटेड वाले हैं, वो सिर्फ इंटीग्रेटेड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसीलिए हमने मिक्स्ड क्वेश्चन दिया है जानबूझ के। नो सर, जो आप मटेरियल भेजे हैं सर, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जानबूझ के आपको मिक्स्ड क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। अगर आपको सिर्फ इंटीग्रेटेड का मिलता क्वेश्चन तो आपको सिर्फ एक लेवल का मिलता, अगर आप 2 ईयर बीएड का क्वेश्चन मिलता तो एक ही लेवल का मिलता, इसलिए मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। और जो टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन होता है वहाँ पे भी मिक्स्ड होता है, ताकि आपको थोड़ा सा हर लेवल का हर टाइप का क्वेश्चन के साथ आप तो एक्वेंटेड रहोगे तो वो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन जो लास्ट आपके कुछ टेस्ट हैं जो PDF फॉर्मेट में हम करने वाले हैं OMR शीट में, वो आपके एग्जैक्टली जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा। जितना प्रैक्टिस हमको ऑलराउंड डेवलपमेंट में करना था, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में करना था, वो हम 24 नंबर टेस्ट तक कर लेंगे। एक्स्ट्रा हाई लेवल का या दूसरे टाइप का वो 24 नंबर क्वेश्चन टेस्ट तक हम लोग करेंगे। बाकी जो 6 टेस्ट होगा वो इंटीग्रेटेड का अलग, 2 ईयर बीएड का अलग, एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है, वी विल डू दैट, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है, उसके लिए आप चिंता मत करो। यस, पर्सनली मैं जो विश्वास रखता हूँ कि क्वेश्चंस का लेवल कभी भी लाइक हार्ड या फिर ये हमेशा क्या होता है कि आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जैसा प्रिपरेशन किया है क्वेश्चन आपको वैसा लगेगा कि हार्ड है कि ये डिफिकल्ट है, ठीक है। ऐसे जनरल तो एक बात चलेगी, ठीक है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि जो आप लोगों का प्रिपरेशन करवाया है हम लोग, ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है, कोई भी पेपर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप ये अपना जो कैपेबिलिटी है उस पर विश्वास रख के एग्जाम दो, सब कुछ सही जाएगा, ठीक है। तो वो जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि इन्होंने एजुकेशन या फिर टीचर्स के बारे में यही स्टेटमेंट दिया है, सब वो सब बहुत सारे लोगों ने बहुत स्टेटमेंट दिया है और वो वाला थोड़ा गलती हो यस रहा है। दैट यू हैव टू मेमोराइज, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। आई विल गिव सम लिस्ट, और स्टडी मटेरियल में जितना है उसको तो पढ़ना है। आई विल आल्सो गिव सम लिस्ट
ऑफ दैट काइंड ऑफ थॉट, जो एजुकेशनल फिलोसफी या थॉट्स से जो क्वेश्चन आते हैं कि ये सेंटेंस किसने बोला है या एक कंसेप्ट किसने दिया, वो एक लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। उसको एक बार देख के जाना, रट के जाना, मतलब आई विल रिकमेंड यू टू मेमोराइज दैट, रिमेंबर दोस थिंग्स, ठीक है, रट के जाना पूरा, रोड मेमोराइजेशन। सर कैन यू रिपीट, सर कैन यू रिपीट इट? जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जनरल अवेयरनेस के, जिसमें आपका कोई कंसेप्ट, Yes, कोई sir. आपका लॉजिक नहीं लगता, बस आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस है, आपका रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, वो रट के जाना है। लाइक फॉर एग्जांपल बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नेचर के ऊपर जो क्वेश्चन है, वो कॉन्सेप्ट है, वो किसने दिया था? एक तो आपका है रविंद्रनाथ टैगोर है। उसके बाद कुछ इनसाइट्स के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अपना अंतरात्मा वाला कुछ क्वेश्चंस है, वो जो हम टेस्ट में डिस्कस किए थे। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज बोला है, ठीक है, तो वो आपको रट के जाना होगा, ठीक है। तो Yes, sir. हाँ, अभी आप लोग ये चिंता मत करो कि कौन सा पेपर में क्या क्वेश्चंस है, क्या है, वो चिंता मत करो। जितना आपको दिया है उसको आराम से पढ़ो, ठीक है। हमने इतना मेहनत किया है तो डेफिनेटली सब कुछ रिसर्च करके ही किया है, तो अच्छे से मेहनत करके Sir, करो। अभी टाइम नहीं है कि कौन सा पेपर, ये वाला पेपर, उसको देखूं, इसको देखूं, डोंट वरी। जितना पढ़ा है सबको रिवाइज करो, रिवाइज ऑल पेपर्स, ऑल टेस्ट, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑल आपका मटेरियल्स, ऑल थ्योरी बुक। एमसीक्यू बुक का जितना किए हो ठीक है, और ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। अभी आपको अगर जो देखो एमसीक्यू बुक में आपने आई होप किया होगा, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लो, नहीं तो थ्योरी बुक से अच्छे से पढ़ो, एमसीक्यू से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखो, और टेस्ट सीरीज से देखो, ठीक है। और एमसीक्यू बुक से जितना हो सके आप देख सकते हो। जनरल अवेयरनेस के लिए हाँ ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस से, ठीक है। और एनी अदर डाउट्स, और कोई दिक्कत है आपका? यू कैन आस्क। सर अभी तो नहीं, लेकिन बाद में पूछ सकते हैं सर, अगर बाद में होगा तो। हाँ, यू कैन आस्क। एंड ओके, एंड प्रसन्न सर, और कुछ आप बताना चाहेंगे तो? आई थिंक म्यूट हो गया आपका माइक। ओके ओके ओके, यस यस डेफिनेटली। हाँ। देखो मैं लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, ठीक है, कि मेहनत किए हो, आप लोग भी किए हैं, हम लोग भी किए हैं, ठीक है। तो एक बात तो श्योर नहीं है कि मेहनत हम लोग किए हैं तो इसमें एक सीख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात तो जरूर है कि जो लोग मेहनत किए हैं उन लोग बाद में जाके कहीं पे खड़े नहीं रहना है, ठीक है। अगर मेहनत हम लोग अगर एक बार मेहनत करना अगर हम लोग चालू कर दिया, फिर स्टार्ट कर दिया, फिर मेहनत हमारे हैबिट पे आ गया, तो हम लोग को कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर यहाँ पे डिसअपॉइंट किसी को नहीं होना है। अगर मिला नहीं मिला तो हम लोग कोशिश करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लास्ट मोमेंट पर कोशिश करेंगे, हम लोग करेंगे, आप लोग करेंगे, और एक सीट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो भी कोई डिसअपॉइंट बात नहीं, अभी नहीं होने के बारे में नहीं सोचना है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत आप लोगों को करना है, आज करना है, अभी इसके बाद भी करना है। अभी आप लोग एक डीसीएस अर्निंग जो टीम है हम लोग का, उसके एक मेंबर हो, डेफिनेटली एक इंटीग्रेटेड मेंबर हो, ठीक है, आप सभी। तो इसके बाद भी वी विल बी इन टच, हम लोग बिल्कुल एक टच में रहेंगे, और आप लोग से सजेशन लेंगे, हम लोग के और बेटरमेंट के लिए आप लोग से फीडबैक लेंगे, ठीक है। और हम लोग अपना जो ये जो एक लाइक हम लोग जो इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे वो और स्ट्रांग होगा विद द हेल्प ऑफ यू, ओके। एंड बाकी किसी का कल का भी सीयूईटी एग्जाम है, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। एंड बाकी तो हम लोग है ही, बेस्ट विशेष तो हम लोग के साथ, हम लोगों के साथ हम लोग का हमेशा से है, ठीक है। बाकी जो लोगों को कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, 14, 15, 16 हम लोग का एग्जाम है, उन लोग का ऑल द बेस्ट। करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, जो भी प्रॉब्लम है हम लोग से डिस्कस करो, ठीक है। बाकी वी विल सी द सक्सेस टुगेदर, ओके। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू प्रसन्न सर। सो स्टूडेंट्स, आपका मतलब जैसे आरआई में आप एंटर करते हो, ठीक है, अगर कुछ लोगों का नहीं हो पाता है तो उसके बाद भी क्या करना है, दैट वी विल डेफिनेटली गाइड यू। आपका आरआई में सिलेक्शन हो जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम लोगों का हो जाएगा। आरआई में सिलेक्शन होने के बाद भी आगे आपको क्या करना है, कैसे आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना है, कैसे बाकी सब आरआई में जो प्रोसेस होता है वो कैसे करने हैं, स्टडी मटेरियल वहाँ पे क्या चाहिए, कैसे पढ़ाई करना है, उसके लिए भी हम लोग हैं, आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आगे बहुत सारा प्लानिंग है, वो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, जितने भी आप लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आरआई हो गया हम लोग छोड़ देंगे या फिर छूट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद भी हम लोग का जो रिश्ता है, जो बना है, वो सिलसिला रहेगा, वो आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड डेफिनेटली आप लोगों का भी हेल्प जरूरत होगा हम लोग को ग्रो करने के लिए। एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट कि आप लोग हैं हमारे साथ, ठीक है, इस जर्नी में आप लोग हमारे साथ हैं, और आप लोग के साथ साथ हम लोग भी सक्सेस देखेंगे डेफिनेटली। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चंस? सर आरआई में जो 50 सीट है भुवनेश्वर, मतलब जैसे कि आरआई भुवनेश्वर में जो 50 सीट है, तो
इसमें से अलग अलग स्टेट का अलग अलग सीट है या एक में ही होता है? नहीं, अलग अलग है आपका, लगभग 55 सीट्स है आई थिंक, आई गेस। और उसमें आपको अपने अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग सीट होता है, सिंगल डिजिट सीट होता है अपने स्टेट और कैटेगरी के लिए। सिंगल डिजिट के आने का मतलब कहाँ पे 4, 6, 3 इस तरह का सीट्स है। तो एग्ज़ाम आपने जैसे मैं हमने भी जो इस बार जो बैच में जितने बच्चों को लिया गया है ना, वो एच पर जैसे कि किसी भी स्टेट से ज़्यादा बच्चे नहीं हो जाएंगे, वो देख के लिया गया है, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दैट, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और अभी के लिए ऑल द बेस्ट सबको, जिनका सीयूटी एग्जाम है उन सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से अभी जैसे मैंने जो लास्ट 3 दिन में करने के लिए बोला था वो अभी करो आप लोग, काम माइंड में वो एग्जाम दो। और आगे आपका जो है एग्जाम होने वाला है, मतलब आरआईसी का एग्जाम, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। आगे हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही, ठीक है। और भी कुछ डाउट है तो पूछो, देन वी विल ओके सर। कवर। यस कोई आरक्षण भी है सर? यस, के लिए कोई आरक्षण भी है? रिजर्वेशन, यस रिजर्वेशन इज आल्सो देयर। एंड रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपके मतलब कैटेगरी का है का मतलब रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपका नंबर ऑफ सीट्स होता है, सीट मैट्रिक्स उसके लिए है अभी। लेकिन आई विल सजेस्ट यू, डू नॉट सी द सीट मैट्रिक्स, डू नॉट सी एनीथिंग, जस्ट सी व्हाट इज रिक्वायर्ड टू यू टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। आप मत देखो कि कितने सीट है, एक सीट होगा तो भी आपको एक ही सीट चाहिए, यू जस्ट नीड 1 सीट, ठीक है। तो उसी एक सीट के लिए आपको लड़ना है, मेहनत करना है। जब आप मेहनत करना छोड़ दोगे तो आप हार जाओगे, जब तक आप मेहनत करते रहोगे तब तक आप जीतते रहोगे। डोंट वरी फॉर दैट, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और जब तक आप मेहनत कर रहे हो, पूरा जैसे बोलते हैं ना, किसी चीज़ को पाने के लिए आप कोशिश करो तो पूरा कायनात उसको मिलाने के लिए लग जाती है। तो ये चीज़ डेफिनेटली होता है, आपको हर एक चीज़, हर एक स्टेप में आपको सपोर्ट मिलेगा किसी ना किसी के वे में, अगर हमारे वे में या फिर हमारी तरफ से, या फिर किसी ना किसी की तरफ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। और एक चीज़ लास्ट में मैं ऐड करूँगा, आरआई में घुसना जितना डिफिकल्ट है, आरआई से पास आउट होके जॉब लेके आना बहुत, उससे बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत मतलब एक आपके लिए मोटिवेशनल चीज़ ये होना चाहिए। और कुछ है तो बोलो, देन वी विल एंड दिस सेशन। यस, वेलकम एवरीवन एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन ऑल्सो, कि आप सब लोग इतने अच्छे तरह से हम फॉलो कर रहे हो सब कुछ, ठीक है। इवन अगर कहीं पे एरर भी होता है तो आप लोग इन्फॉर्म करते हो और उसको हम लोग करेक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो आपके वजह से ही मतलब हम लोग मेहनत कर पा रहे हैं। आप लोगों का इतना जो है मतलब पार्टिसिपेशन, इतने लेवल पे आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। स्टार्टिंग में जैसे हमने लास्ट ईयर हमने पहली बार कोई बैच हमने स्टार्ट किया था और उसमें लगभग लगभग 600 लोग ज्वाइन हुए थे टोटल, हर एक इसमें देखा जाएगा तो, मतलब स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में, और आपका जो ऑनलाइन क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में, और स्टडी मटेरियल में तो बहुत सारे थे। इस बार लगभग 800 है, उसमें से आप 150 लगभग आप ऑनलाइन क्लासेस में और बाकी भी हैं। तो इतने लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन की वजह से ही हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सही में बोला जाएगा तो इस पर्टिकुलर दौर में जॉब इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जॉब नहीं करें तो पूरा सोसाइटी कोई आपको नहीं पूछेगा। तो इस लेवल पे आके अगर मतलब इस चीज़ को कंटिन्यू कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। आप लोगों के लिए ही हम लोग बाकी सब में भी जितना टाइम है वो दे के यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम अपना मेहनत अपना एफर्ट दे के हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर दैट ऑल्सो एंड वी विल अगेन मीट इन द अपकमिंग क्लासेस। आज के लिए ज़रूरी था क्योंकि अभी अब लगभग 9 to 10 डेज हैं, तो आपको थोड़ा मोटिवेशनल या फिर मोटिवेशन चाहिए था, तो दैट वी हैव डन फॉर दैट। एंड आगे भी हम लोग मिलेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, सो यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन।